Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 13, Mahatma Gandhi and the National Movement. My dear student, in this chapter we have already discussed about the Gandhian movement and the Gandhian biography. गांधी का जीवन चरित्र और गांधी के चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पहले पढ़ा। आज हम गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो कांग्रेस के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद की परिस्थितियों के बारे में हम बात करेंगे। वी हैव आल्सो रीड अबाउट दैट क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द सिचुएशंस व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन गांधी वाज अरेस्टेड आफ्टर द लॉन्चिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। Operation Zero Hour that was started by the British government and imprisoned all the Indian leaders. The Indian leaders jailed. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ. These are all. There is no need to explain their names again and again because in my last video I have already taught you about their name and all the informations. We are going to discuss after the Quit India movement which type of changes introduced by the British government in India. We have already discussed about that what the Cripps mission. Cripps mission that was failed. And then after we have all discussed the next mission that was the cabinet mission. Cabinet mission. It was also not accepted by the British era. I mean to say it was also not accepted by the Congress and Muslim League both during British era. And third steps which was taken by the British government that Bevell was replaced by Lord Mountbatten and Batten reached India as a last Governor General. It was the clear-cut instruction for Lord Mountbatten that go India and decide the solve the problem of the Congress and the problem of the India. Batten plan that was launched 3rd June 1946. 3 जून 1946 बैटन प्लान आया. क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 एंड देन आफ्टर 1946 3 जून 1946 माउंटबेटन प्लान आया और यहां से भारत की आजादी के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ. क्या हुआ कि इन चीजों आई थिंक दीज आर ऑल वी हैव स्टडीड इन माय प्रीवियस क्लास बट आई विल रिमाइंड यू again. In February 1947 Bevell was replaced by date 3rd June 1940. तो कह रहा है कि यहां पे अब बेबेल क्या हुए. अब जब माउंटबेटन भारत आते हैं बेबेल को रिप्लेस करके तो यहां पे आपको कुछ चीजें दिखाई देती हैं. जैसे क्या कि कैबिनेट मिशन के बाद आप बेटन प्लान और बेटन प्लान के बाद की जो परिस्थितियां बदलती हैं. कहता है इन फरवरी 1947 बेबेल वाज रिप्लेस्ड एज ए वायसराय बाय लॉर्ड माउंटबेटन. ओके, इट मींस द बेटन प्लान इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 3rd June 1947 when the Lord Bevell returned back their country. In February 1947, Bevell was replaced as the Viceroy of the Lord Mountbatten. Mountbatten called the one last round of talk. Mountbatten it clearly instructs. Mountbatten had the clear instructions कि आप जाइए, बात करिए और भारत की प्रॉब्लम सॉल्व करिए. क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहां के प्राइम मिनिस्टर एटली ने क्लियर अनाउंस किया था
कि जून 1948 के पहले पहले या जून 1948 तक हम भारत को आजादी दे देंगे। और इसी स्टेप में ये उठाया गया कदम था कि बेबल को वापस बुला लिया गया और बेबल की जगह भारत में नए गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया फरवरी 1947। कहता है माउंटबेटन कॉल्ड वन लास्ट राउंड ऑफ टॉक बट व्हेन दीज टू प्रूव्ड द इनकंक्लूसिव ही अनाउंस्ड दैट द ब्रिटिश इंडिया would be freed but also divided. The formal transfer of power was fixed for 15 August. When that day came to, it was celebrated with the gusto in different part of the India. In Delhi, there was prolonged the applause when the President of Constituent Assembly began the meeting by invoking the father of the nation, Mohandas Karamchandra Gandhi, outside the assembly. The crowd shouted महात्मा गांधी की जय। इट मीन्स जब फरवरी 1947 में बेबल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय नियुक्त हुए भारत के, तो उनके पास उन्होंने बात करने के लिए बातचीत का अंतिम दौर, भारत की आजादी के लिए अंतिम दौर की बातचीत करने के लिए भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया, बुलाया। लेकिन अंतिम दौर का ये जो बात, जो सुबह तक दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी समझौते तक कराने की थी, वो बात पूरी तरीके से सुलझ नहीं सका मामला। मुस्लिम लीग अपनी हठवादिता के चलते इस समझौता नहीं हो सका। अंतिम दौर के आह्वान जब उन्होंने किया, जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफल हो गया, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन इसका विभाजन भी होगा। बेटन वॉज क्लियरली अनाउंस्ड दैट वी आर गोइंग टू फ्री इंडिया, बट इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ दैट इंडिया शुड बी डिवाइडेड इन टू पार्ट, फर्स्ट इंडिया एंड सेकेंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दो पार्ट में बटेंगे, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस था ये। और अब 15 अगस्त का दिन भारत की स्वतंत्रता के लिए निश्चित कर दिया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की, तो बहुत देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सदन गूंजता रहा। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बात कही कि आज से भारत देश के राष्ट्रपिता के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी को स्वीकार किया जाएगा, तो सभी लोगों ने इसका पुनर्जोर स्वागत किया और असेंबली के बाहर एक नारा लगा, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। दिस वॉज द मोमेंट। आई मीन टू से दैट हियर द सम इंपॉर्टेंट डेट, 1 February 1947, बेटन क्या हुआ? बेटन भारत आते हैं। इट मीन्स माउंटबेटन reached India and the conversations and negotiation that was failed, and Mountbatten decided Britain want to free India। ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र करना चाहती है और अब इसीलिए प्लीज कम and talk on that issues, on that matter. But unfortunately the Muslim leagues, he was not accepted the proposal which was given by Mountbatten के द्वारा दिया गया प्रपोजल मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया और ये बात तय हुई कि अब भारत को दो पार्ट में बांट दिया जाएगा, फर्स्ट इंडिया एंड सेकेंड पाकिस्तान।
I mean to say that I hope you are getting what I want to अंडरस्टैंड। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जैसे फर्स्ट जब ब्रिटेन भारत आए तो ब्रिटेन ने एक चीज क्लियर कर दी कि हम भारत और पाकिस्तान को दो पार्ट में बांट के क्लियर कर देंगे। भारत और पाकिस्तान दो भाग में बटेगा। डियर स्टूडेंट, इट इज द वेरी क्लियर दैट लॉर्ड माउंटबेटन clearly announced that there were two countries after when I mean to say that when British Empire spread India should be divided into two parts. First India and second Pakistan. Pakistan, their country was only for Muslims. But here I want to inform you that Muhammad Ali Jinnah, he want to establish a separate state that will be Pakistan, but Pakistan would be a secular country, not it would be the extreme Muslim country. That was the dream of Muhammad Ali Jinnah, but their dream that was totally failed. उनकी ड्रीम फेल हो गई। नेक्स्ट इंडिया, here it means it was controlled by Muslim League, and India, no doubt to say that was controlled by Congress during that time. Congress was the major party, and in the Congress all religions members, they were elected. कांग्रेस इंडिया, मुस्लिम लीग पाकिस्तान, दो पार्ट में उठा। क्योंकि जब पेटन ने बात की बेबल के जाने के बाद, तो बेबल के जाने के बाद ब्रिटेन को ऐसा महसूस हुआ कि ये वार्ता जो हो रही है वो पूरी तरीके से सफल नहीं होगी, और तब उन्होंने डिसाइड किया कि भारत और पाकिस्तान को दो पार्ट में बांट दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान दो पार्ट में बट के क्या बनेगा, भारत और पाकिस्तान दो पार्ट में टूट करके दो देश के रूप में दिखाई देंगे। जब 1946 9 नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बैठक हो रही थी। शुरुआत में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक घोषणा की, एक अनाउंसमेंट किया, आई मीन टू से दैट द अनाउंसमेंट दैट वाज स्पोकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली राजेंद्र प्रसाद, दैट टुडे ऑन दैट डे वी आर गोइंग टू एक्सेप्टेड दैट the M.K. Gandhi, he became the father of our nation. It was accepted by whole constituent assembly member. I mean, the whole constituent assembly, whole member of constituent assembly. ये बात सारे constituent assembly के मेंबर को द्वारा एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। देर तक उस पर तालियां बजी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? क्या ये सारी चीजें जो घट रही थी वो सब कुछ सही था? नहीं, इसके बाद की कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए। आई मीन टू से दैट यू हैव टू रिमेंबर द इंसिडेंट व्हिच वाज हैपेंड ड्यूरिंग पार्टीशन। आई होप आई टोल्ड यू दैट डायरेक्ट एक्शन डे 16 December 1946 that was celebrated by Direct Action Day. Direct Action Day by Muslim League. मुस्लिम लीग के द्वारा 16 दिसंबर 1946 डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया। उस दिन कलकत्ता में ही नहीं, पश्चिमी पंजाब, मतलब आज का जो पंजाब है,
पूरा सिंध, पंजाब, इन क्षेत्रों में और भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भीषण दंगे हुए, खून खराबा हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोग मारे गए. आई मीन टू से दैट डायरेक्ट एक्शन डे टू प्रेस द लीग demanded for Pakistan on the designated day 16 August 1946. Bloody riots broke out in Calcutta. The violence spread to rural Bengal, then to Bihar, and then across the country to the United Provinces and the Punjab. In some places, Muslims were the main sufferers. In other places, Hindu. I mean to say that everywhere Hindu and Muslims, they were suffered. In the Bengal, especially Hindu, they were suffered in huge amount. They were raped. The women's, their condition was very difficult. Women's, they were raped by the Muslims. I mean to say that Hindu women's. They were captured. I am not telling that the Muslims not suffer in Bengal, but in the majority, Muslims, they were in majority in Bengal, so that's why the Hindu, they suffered in huge amount in Bengal. And then after, what happened with the northwest frontier, as well as both suffered, Sikh and Muslims. ये घटनाएं चली और फिर इसके बाद गांधी जी ने वो स्टेप लिया जिसको गांधी जी के हेरोइक कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करता है, बताता है. A topic which is very important, which we are going to discuss, the last heroic day. The last heroic day. ये लास्ट हीरोइक डे क्या था? अंतिम दिन, अंतिम बहादुरी भरा दिन गांधी जी के द्वारा जो लिया गया. कहते हैं कि एट द हैपेंड महात्मा गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट. I mean to say that when India became free, everyone celebrated their independence. But Mr. Gandhi, they were not in Delhi during that time. He was in Calcutta. He was tried to what? Tried to कि जो दंगे हो रहे थे उसको समाप्त करना चाहते थे. वो उसमें बंगाल में थे, नोआखली में थे जब दंगे हो रहे थे. कहता है कि जब 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में उत्सव मनाए जा रहे थे, महात्मा गांधी इन उत्सव में शामिल नहीं थे. उस समय वो कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहां भी न तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और न ही कहीं झंडा फहराया. गांधी जी उस दिन 24 घंटे के अनशन पे बैठे थे. इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए गांधी ने संघर्ष किया था, उसका अकल्पनीय कीमत, एक ऐसी कीमत गांधी जी को देनी पड़ रही थी जिसके लिए वो तैयार नहीं थे. स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया, उसके लिए जो रिजल्ट आया, वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं था. उनका राष्ट्र, उनका देश, उनका हिंदुस्तान दो पार्ट में विभाजित हो रहा था. दोनों, जिसको उन्होंने कहा था भारत माता के दो आंखें, हिंदू और मुस्लिम्स, दोनों एक दूसरे की गर्दन को काटने पे तैयार थे. इनके जीवनी लेखक डीजी तेंदुलकर महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी जो लिख रहे थे, महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी लिख रहे थे, ऑटोबायोग्राफी, इट मीन्स हिमसेल्फ रोट अबाउट हिमसेल्फ. अब जब कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखे, दैट वाज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. बट इफ अदर्स रोट अबाउट देयर लाइफ, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी. बायोग्राफी, गांधी जी के बायोग्राफी लेखक डीजी तेंदुलकर ने लिखा कि सितंबर अक्टूबर के दौरान गांधी जी जो दंगों से पीड़ित लोग थे उनको सांत्वना देते हुए अस्पताल, जो कैंप थे, शिविर और प्लेस टू प्लेस जाकर के लोगों के दुख दर्द बांटने का प्रयास कर रहे थे. उन्होंने सिखों और हिंदुओं और मुसलमानों से अर्ज किया, सिफारिश की, रिक्वेस्ट किया कि सारे कुछ भूल करके एक साथ भाईचारे के साथ रहने, शांति के साथ देश में जीवन बसर करें. गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकार का एक प्रस्ताव पारित कर दिया पार्लियामेंट में. कांग्रेस ने
टू नेशन थ्योरी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पे मंजूरी देनी थी, तब भी उसका यह दृढ़ विश्वास था कि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ अपने धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में रह सकते हैं। इसलिए भारत कैसा देश होगा? एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे कि वो धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी एक साथ राज्य में राज्य की तरफ से संरक्षित हों, उनको संरक्षण प्राप्त हो। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण को कांग्रेस रोकेगी, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करेगी, माइनॉरिटीज राइट को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। I mean to say that what happened during that time when the riots that was spread through whole country, पूरे भारत में दंगे हो रहे थे डायरेक्ट एक्शन डे के थ्रू। As it happened, Mahatma Gandhi was not presented at its festival in the capital on 15 August 1947. He was in Calcutta, but he did not attend any functions or host a flag there either. Gandhiji marked the day with a 24-hour fast. The freedom he had struggled so long for had come at unacceptable price, with a nation divided and Hindu and Muslims at each other throats. Through September and October, writers, his biographer D.G. Tendulkar, Gandhiji went round hospital and refugee camps, giving consolations to distressed people. He appealed to Sikh and Hindu and Muslims to forget the past and not to dwell on their sufferings, but to extend the rights hand to fellowship to each other and to determine to live in peace. Gandhi felt that कि ये समय आएगा सभी लोग एक साथ हो जाए, एक संकल्प ले कि अब जो कुछ हुआ वो सब भूल जाए और एक साथ देश को आगे बढ़ाने में हिस्सेदारी दें, शांति से अपना जीवन यहाँ पे जिए। At the initiative of Gandhiji and Nehru, the Congress now passed the resolution on the right of minorities. The party had never accepted the two-nation theory. Forced against, it will be accepted the partition. It is still believed that India is a land of many religious people. India is a land of many religions and many races and must remain so. Whatever be the situation in and must remain, I mean to say that whatever be the situation in Pakistan, India may be democratic secular state where all citizens enjoy full rights and are equally entitled to protection of the state, irrespective of the religion of which they belong. The Congress wished to assure the minorities in India that it will continue to protect to the best of its ability their citizens' right against the aggression. Many scholars have written of the months after independence as being Gandhiji's finest hour. After working to bring peace to Bengal, Gandhiji now shifted to Delhi, from where he hoped to move on the right-run districts of Punjab. While in the capital, his meetings were disturbed by refugees who objected to the readings from the Quran or shouted slogans asking why he did not speak of the suffering of those Hindus and Sikh still living in Pakistan. Why Gandhi not discuss on their problems who lived in Pakistan? Why they suffer such type of problems? Why Gandhi always
discuss the Indian Muslims and their conditions. Gandhi should be discuss their problem also who lived in Pakistan. I mean to say that the Hindu and Sikh. What was the reason behind that कि Gandhi not discuss on their issues, their problems in their meetings? Some students believe that कि इसके पीछे और भी कई कारण थे. What was the reason? D.G. तेंदुलकर लिखते हैं कि there were the first reasons that Gandhi felt that if we will not treat the Muslims in India as a common citizens, if we will not protect them, how can we discuss our people, I mean to Hindu and Sikh in Pakistan and their conditions? We have no right. हमारे पास कोई अधिकार नहीं कि हम उसके बारे में बात करें. इस तरह का बात D.G. तेंदुलकर लिखते हैं. गांधी ऐसा सोचते थे. It is written in a book. See, the many scholars have written that the months after independence as being Gandhiji's finest hour after working to bring peace to Bengal. Gandhiji now shifted to Delhi from where he hoped move on to right turn districts of Punjab while in the capital. His meetings were disrupted by refugees who objected to reading from the Quran or shouted slogans asking why he did not speak of the suffering of those Hindu and Sikh still living in Pakistan. In fact, as D.G. Tendulkar writes, Gandhiji was equally concerned with the suffering of the minorities community in the Pakistan. He would have liked to be able to go there, the succor, but with what face could he now go there when he could not guarantee full redress to Muslims in Delhi? There was an attempt on Gandhiji's life on 20th January 1948, but he carried on the undaunted. On 26th January, he spoke his prayer meeting of how that day had begun celebrated in the past as Independence Day. Now freedom had come, but its first few months had been deeply dissaluting. However, he trusted that the worst is over. The Indian would henceforth work collectively for the equality of all class and creeds. Never the domination and the superiority of the major community over a minor, however insignificant it may be in number of the influence. He also permitted himself the hope that though the geographically and the politically India is divided into two, at heart we shall ever be friends and brothers, helping and respecting one another and be one for the outside world. Gandhiji had fought the lifelong battle for free and in India. And yet, when the country was divided, urged that the two parts respect and befriend one another. Gandhi always tried कि इस तरह की स्थिति हो. D.G. तेंदुलकर जब बहुत सारे इतिहासकार ये बात कहने लगे कि गांधी जी का जो ये दौर था स्वतंत्रता के बाद का, ये उनका गोल्डन एरा था. बंगाल में उन्होंने शांति स्थापना के लिए अभियान चलाए और उसके बाद गांधी जी दिल्ली आ गए. यहां वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में भी जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में ही जो रिफ्यूजीज थे उन लोगों ने कमेंट किया, गांधी जी से क्वेश्चन किया. बहुत सारे लोगों ने उनकी सभाओं में कुरान की जो आयातें पढ़ने की जो प्रथा चल रही थी उस पर आपत्तियां उठाई. कई लोगों ने इस बात पर नारे लगाते थे कि गांधी जी उन हिंदू और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते जो अभी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं. इसका उत्तर देते हुए D.G. तेंदुलकर, जो गांधी जी की जीवनी लेखक थे, वो कहते हैं कि गांधी जी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे.
चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो। गांधी जी दोनों की स्थितियों से परिचित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहां जाना भी चाहते थे, लेकिन वो वहां पे किस मुंह से जाएं जब उन्हें भारत में ही मुसलमानों की सुरक्षा ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे थे। ये बात डीजी तेंदुलकर लिखते हैं। गांधी जी ने हमेशा ये प्रयास किया कि पूरी की पूरी कंडीशन भारत की पार्टीशन के बाद की जो भी हो, अब भारत और पाकिस्तान को एक दोस्त के रूप में, एक भाई के रूप में एक साथ मिलकर के सहयोग की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। गांधी जी हमेशा इसके लिए प्रयासरत थे, लेकिन विडंबना इतनी विचित्र है कि आज तक भारत और पाकिस्तान एक साथ कभी भी न दोस्त बने न भाई बने। आज वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन करके एक दूसरे की शांति, स्पेशली दोनों को लगता है कि वो हमारे दुश्मन है। पाकिस्तान जिस आदर्श को लेकर चला था, आज वो उसी से भटक गया। एक सेकुलर स्टेट की बात मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, लेकिन आज पाकिस्तान एक मुस्लिम धर्म के आधार पर बना हुआ देश और धर्म के आधार पर चलने वाले कानून से देश चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे दूसरे धर्मों के लोगों को रहने के लिए कोई भी स्वतंत्रता नहीं होगी या सीमित स्वतंत्रता होगी। I think there is no need to explain about that condition of minorities who are living nowadays in Pakistan. Their condition was very worse than Sikh and Muslims. Sikh and Hindu, they were exploited by the Muslims in Pakistan day by day. If you will read the news, if you will watch news, you can easily understand what we are going. The Gandhi's dreams never succeed. गांधी ने स्वप्न देखा था कि दोनों साथ साथ रहेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, बातें करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।